تو بس میں ہی جانتی ہوں کہ میرے دل پہ کیا بیتتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ایک نارمل لائف جیوں, میرے بھی بچے میری نظروں کے سامنے ہوں, مجھ سے ضد کریں, مجھ سے جھگڑیں, مجھے فرمائشیں کریں. میرا بھی دل کرتا ہے میں ان کی فرمائشیں پوری کروں, میں انہیں کہیں لے جاؤں, انہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں, سر میں ایک اچھی لائف دوں جو ان کے باپ کی زندگی میں ان کی تھی, لیکن میں نہیں کر پا رہی. کہ میرے بچے چلو میری نظروں کے سامنے تو رہیں گے, کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھیں گے. میں اگر جاب کروں گی تو میرے بچے سیف نہیں رہیں گے, اکیلے کس کے پاس رہیں گے. یہ سوچ کے کی ایک تحفظ کے لیے کی, لیکن وہ تحفظ مجھے نہیں مل سکا, وہ میرے بچوں کو نہیں مل سکا. وہ میں اس میں پوری طرح ناکام رہی ہوں اور مجبور ہو کے بدظن ہو کے وہ مجھے کھلا لینی پڑی. سر بس یہ بہت دکھ ہے, مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ پردے میں رہنے کے لیے, ایک صاف رہنے کے لیے ہمیں کوئی 500 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں ایک پاک لباس پہننے کے لیے تو ہمیں 500 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہمیں ننگا کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لٹانے کو لوگ تیار ہیں, جو ہمیں منظور نہیں ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تہاڈی خدمت 'ਚ حاضر ہے تہاڈا ہوسٹ بابر بیگ اور تسی ویکھ رہے ہو اپنا ABHD TV. ناظرین اج اسی موجود ہاں جی گجرانوالا, اور ساڈے نال موجود نے ایک خاتون جنہاں نوں معاشرے دے بہت سارے جڑے مسائل نے انہاں دا سامنا ہے. چونکہ یہ بیوہ نے, اللہ تعالیٰ انسان واسطے کی کردا ہے وہی بہتر ہوندا ہے. انسان دی ایک اپنی حکمت ہے, ایک خدا دی حکمت ہوندی ہے, لیکن انہاں نوں بالکل عمر نہیں ایسی, چند سال ہی شادی تو بعد جڑا ہے انہاں دے ہسبینڈ دی ڈیتھ ہو گئی. وہ تو بعد انہاں نوں معاشرے دی کیڑی پرابلم جڑی ہے, کیڑیاں تکلیفاں نے جنہاں دا سامنا کرنا پیا ہے. ساڈے معاشرے 'ਚ ایک کلی عورت دا رہنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اگر عورت دا خوبصورتی ہوتی تو وہ بھی وہ واسطے تے پرابلم ہے, اور ساڈے معاشرے 'ਚ وہ کس طرح وہ بارے سوچا جاتا ہے. انہاں نال گل کرنے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا یہ دسو کہ تہاڈی شادی جڑی ہے کہڑے سن 'ਚ ہوئی سی؟ سن 2005 میں شادی ہوئی تھی. 2005 جی, اور 2015 میں ہسبینڈ کے اچانک سے گردے فیل ہو گئے تھے, تو 2016 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے جب ان کے گردے فیل ہوئے ہیں تو میں نے بہت بھاگ دوڑ کی, میں نے بہت کوشش کی. میں جیو تک پہنچی, جیو کی ٹیم آئی, انہوں نے پروگرام کیا, پھر ہمارا پروگرام چلا. پھر مجھے CM آفس سے کال آئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم کڈنی آپ کو خود ارینج کرنی ہوگی, تو ہم ڈائلسس ہم کروا سکتے ہیں, باقی اگر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتی ہیں تو آپ کو کڈنی کرنی ہوگی خود سے. لیکن انہوں نے کہا, جب میں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لی تو پتہ چلا کہ اس پہ بین لگا ہوا ہے. تو میرے اپنے ریلیٹیوز اگر میں خود چاہوں تو دے سکتی ہوں, یا ان کے بلڈ ریلیشن دے سکتے ہیں. میں نے سب کی منتیں کی, کسی نے بھی گردہ نہیں دیا. میں نے اپنا کوشش کی, لیکن میرا ان کے ساتھ بلڈ گروپ میچ نہیں کیا. اس وجہ سے ان کی 2016 تک ان کے ڈائلسس ہوتے رہے, اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. انا للہ انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جوار رحمت 'ਚ جگہ دے اور تھوڑے واسطے آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا, انہوں نے جان تو بعد یہ دسو کہ گھر تہاڈا اپنا ہے یا کرائے دا ہے؟ نہیں سر, میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے, گھر بھی رینٹ پہ رہا. بہت میں نے مشکلات تب سے لے کے آج تک میں مشکلات جھیل رہی ہوں, اور بہت میں نے کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو ایک بہتر لائف دے سکوں, لیکن میں ناکامیاب ہو رہی ہوں. دن بدن بہت زیادہ مایوس ہو رہی ہوں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میری سیلری بھی کم ہے, اور اس سیلری میں وہ بل اور گیس وہ پورے ہو جاتے ہیں, کرائے پورے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا. اس کے بعد میں کیا کروں؟ کنی سیلری ہے تہاڈی؟ سر میری 15,000 سیلری ہے. 15,000 سیلری؟ جی سر, 4-5 ہزار تو بل آ جاتا ہے, باقی کرایہ دے کے سر اور گیس کا دے کے کچھ بھی نہیں بچتا میرے پاس کہ میں اپنے بچوں کو کھانا دے سکوں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. بچے تہاڈے اسکول گوئنگ نے؟ جی سر, اسکول پڑھتے ہیں, اور ہاسٹل میں نے انہیں کروایا ہوا ہے داخل.
सिर्फ इसलिए कि बच्चे सेफ़ नहीं हैं घर में, मैं घर नहीं होती और मैं उनको नहीं दे सकती, मैं उनको वो ज़िंदगी नहीं दे सकती। मैंने इसलिए अपनी आंखों से दूर किया हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई झेल रही हूँ। मैंने, मेरे हस्बैंड भी नहीं और मैंने बच्चों को भी अपने खुद से दूर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि कम से कम उन्हें वहाँ रोटी तो मिलेगी, वहाँ खाना तो मिलेगा, मेरे साथ वो मुश्किलात ना झेलें। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, मैं उन्हें सुबह खुद स्कूल भेजा वापस आना, ये कभी? सर जब मैं शाम को घर वापस आती हूँ और घर बिल्कुल खाली मिलता है तो बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है। मेरा भी दिल करता है मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, मेरे भी बच्चे मेरी नज़रों के सामने हों, मुझसे ज़िद करें, मुझसे झगड़े, मुझे फरमाइशें करें। मेरा भी दिल करता है मैं उनकी फरमाइशें पूरी करूँ, मैं उन्हें कहीं ले जाऊँ, उन्हें घुमाने के लिए ले जाऊँ, सर मैं एक अच्छी लाइफ दूँ जो उनके बाप की ज़िंदगी में उनकी थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। मेरा घर बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल खाली है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं सिर्फ इस गुर्बत की वजह से। ये गुर्बत ना हो तो मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर ना हो। लोग मुझ पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चों को खुद से दूर करके पता नहीं खुदायाशी करती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। लोग नहीं देखते कि हम पे बीत क्या रही है, लोग सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये है, वो है, इसमें ये होगी बात, वो होगी, इधर कहीं अपनी अयाशियों के लिए, अपनी सैरों के लिए इसने बच्चों को खुद से दूर किया हुआ है। मुझे बताएं कौन माँ है ऐसी, कौन माँ ये चाहेगी कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो? कौन माँ ये चाहती है कि मैं अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर करूं? कौन माँ चाहती है कि मैं घर आऊँ तो मेरे घर बच्चे खिलखिलाते नज़र ना आए, आपस में हंसते खेलते लड़ते झगड़ते? हर माँ चाहती है मेरे घर में ये माहौल हो, लेकिन मेरा घर वीरान है, बिल्कुल वीरान है और शायद ऐसे ही रहेगा। मैं बहुत सोचती हूँ कि कब तक वो रहेंगे उधर, कब तक? जवान होके वापस आए तो क्या, उनका बचपन तो ख़त्म हो गया, उनका बचपन तो सारा ख़त्म। वो मुझसे क्या, वो अपना क्या बचपन याद करेंगे? अपना बचपन याद करेंगे तो वो हॉस्टल को याद करेंगे। नाज़रीन, एक डरी हुई माँ है, चूँकि इन्हां दी एक बेटी है, एक बेटा है, सो इस मुआशरे दी एक डरी हुई माँ है, चूँकि उन्हां दा कहना है वे कि मैं बेवा हाँ ते मैनू लोग किहड़ियां नज़रां नाल देखदे ने। अच्छा, तुसी कदी किसी नूं हैल्प दा किया है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर किया तो फिर उन्हें की किया है? सर जिसको भी हेल्प के लिए कहा है उसने, सर बताते हुए भी शर्म आती है कि उन लोगों की सोच बहुत घटिया है। हर कोई अपने मतलब के लिए हेल्प करता है, मतलब के बगैर कोई हेल्प नहीं करता, और जो वो चाहते हैं वो सर हम नहीं कर सकते। हमारी सफ़ेद पोशी का भरम क्यों नहीं रखा जाता? हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, वो कैसे जिएं अपनी लाइफ? जो मेरे जैसी और भी औरतें हैं वो बेचारी क्या करें, वो कहाँ जाएं? वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हैं, एक बच के एक नेक लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक पाक ज़िंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन लोगों से अगर मदद की रिक्वेस्ट की जाती है तो वो अपनी गर्ज आगे रख देते हैं, तो फिर से हम क्या करें? अच्छा, मैनू ये दसो कि तुसी जवान सो, खूबसूरत सो, तो तुसी दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? सर की थी पेरेंट्स ने शादी भी हुई थी। यानी कि दोबारा तुसी शादी की थी? जी शादी हुई थी, शोहर के वफ़ात के तो कुछ अरसा बाद। सिर्फ मैंने पहले तो मैं मानती नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सिर्फ इसलिए माना कि मेरे बच्चे चलो मेरी नज़रों के सामने तो रहेंगे, कम से कम मेरी आंखों के सामने पले बढ़ेंगे। मैं अगर जॉब करूंगी तो मेरे बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे, अकेले किसके पास रहेंगे, ये सोच के की, एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए की, लेकिन तो वो तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिल सका, वो मेरे बच्चों को नहीं मिल सका, वो मैं उसमें पूरी तरह नाकाम रही हूँ और मजबूर होके, बदज़न होके वो मुझे खुला लेनी पड़ी। अच्छा, हुण तुसी किराए ते रहिंदे हो, तुहाडा जिहड़ा 15-16 हज़ार रुपये तुहाडी सैलरी है, ਉਹਦੇ 'ਚ वक्त ਜਿਹੜਾ गुजारना बहुत मुश्किल है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला ਦਾ कोई ऐसा बंदा इस ज़मीन ਤੇ अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे बंदे ने, ਕਿਸੇ ਦੀ नज़र पै जाती गल है, तो अगर कोई बंदा ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करना चाहता तो की हेल्प करे ਤੁਹਾਡੀ? सर मैं चाहती हूँ कि मुझे रहने को ठिकाना मिल जाए, बस मुझे कोई छत मिल जाए, बेशक छोटा सा कोई घर मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए, ताकि अगर मेरी कल को डेथ हो भी जाती तो मेरे बच्चे रुले ना, कम से कम मेरे बच्चों को एक छत तो मैसर हो, या छत अपनी हो तो मैं कम से कम अपने बच्चों को तो ला सकूं, कम से कम मैं उन्हें रोटी तो खिला सकूं,
कि वही जो मैंने खर्चा करना है वो मैं अपने बच्चों पे लगाऊं, मेरे बच्चे घर मेरी नज़रों के सामने रह सकें। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, अगर मुझे दुनिया में इतने लोग हैं, मलिक रियाज साहब हैं, और भी दुनिया में बहुत से इतने अमीर तरीन लोग हैं, अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी सी हेल्प करने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरे बच्चों का बचपन वो अच्छा गुजार सकेंगे, अपना बचपन वो अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। कल को वो अपना बचपन याद करेंगे तो वो मेरी मोहब्बत उन्हें मिलेगी, ना कि वो हॉस्टल की सारी पाबंदियाँ और हॉस्टल का सारा कुछ वो उन्हें मिलेगा। नाज़रीन, एक तो है भी कि इन्होंने अपने बच्चे अपने तो जुदा इस तो किए हुए हैं कि इन्हों के जो बच्चे ने किसी ट्रस्ट च पढ़ते हैं, चूँकि ना तो उन्हों खाना जड़ा वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो है वे कि कोई थोड़ा बहुत जड़ा महीने का बचा के 15,000 सैलरी चों तो वो जड़ा है वो अपने बच्चों वास्ते उन्होंने को चले जाते हैं, मिल आते हैं। एक तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि ये अपने बच्चों अपने कोल रख सकन, कोई अल्लाह का बंदा महीने का कम से कम चलो इन्हों के जोड़े बच्चे ने दो उन्होंने वास्ते कोई ऐसा सिलसिला बना दे, अल्लाह ताला इन्होंने वास्ते कोई रस्ता कढ़ दे तो कम से कम ये बेचारी अपने बच्चों नाल तो रह सके। तो अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते कोई एडे मतलब वाह वेले कोई वक्त करने की जरूरत नहीं होंदी, बस जिन्होंने उन्हें नवाजिया होया है उहदी रज़ा वास्ते उन्होंने राज़ी करने वास्ते नीयतां इहो ਜਿਹੇ लोगों की अगर मदद करांगे, ये वो सफ़ेद पुश लोग ने जिहड़े किसी नूं कह नहीं सकते, किसी के रो नहीं सकते, किसी के मंग नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने इन्ना खूबसूरत बनाया है, एक इशारे नाल एक खतून चाहे तो पता नहीं की कर सकती है, लेकिन वो रस्ता जिहड़ा रस्ता सिराते मुस्तकीम का रस्ता है उस रस्ते ते चलना चाहता है। तो सानू चाहिए कि अगर कोई सिराते मुस्तकीम के रस्ते ते जा रहा है तो असीं उहदा अल्लाह की रज़ा वास्ते जरूर साथ दईए। इहदे नाल ही तुहाडा होस्ट बाबर बेग तुहाडे कोलों इजाज़त चाहेगा। तुसीं कोई पैगाम देना चाहते हो? सर बस ये बहुत दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पर्दे में रहने के लिए, एक साफ रहने के लिए हमें कोई 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, हमें एक पाक लिबास पहनने के लिए तो हमें 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें नंगा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लुटाने को लोग तैयार हैं, तो जो हमें मंजूर नहीं है सर। नाज़रीन, बड़ा तकलीफ ते अमल है और बड़ी तकलीफ वाली गल है, सानू इस गल ते गौर करना होएगा कि किसी नूं पर्दा करने वास्ते 500 रुपया नहीं खर्चा जा सकता और जिसम नंगा करने वास्ते लखां रुपया दी आफर जड़ियां ने वो मौजूद ने, लेकिन दुनिया फानी है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया तो वापस जाना होएगा। सो सानू ऐसे अमाल करने चाहिए ने कि जिन्हां ते सानू फखर होए और वो साड़ी अगली जड़ी मंजिल है वो आसान बना दें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसी जितनी भी औरतें हैं उनकी प्लीज़ कोई महाना वजीफ़ा या कुछ ऐसा किया जाए कि वो कभी किसी की बुरी नज़र से, वो लोगों की बुरी नज़रों से बच सके। बुरी नज़रों से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि उन्हें इज़्ज़त से उन्हें घर बैठ के वो सब मिले, चलो ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना मिले कि वो कम से कम एक इज़्ज़त की रोटी तो खा सके घर बैठ के, उसको गैरों की नज़र उस पर ना पड़े, वो बुराई की तरफ कभी ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत है उसमें, हो सकता है उसमें ऐन मुमकिन है कि औरत से भी मिस्टेक हो जाए। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये रियासत मदीना है और इसको प्लीज़ वही बातें जहन में रख के वो सारा कुछ सोच के प्लीज़ एक औरत को तोहफ़्फ़ दिया जाए। बस हमारे मुल्क में एक औरत को तोहफ़्फ़ दिया जाना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ इस बात पे गौर करें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, असी एक बंदा चाहिए तो असी रियासत मदीना भी बना सकते हैं कि असी पूरा मुल्क अगर रियासत मदीना नहीं बन रहा तो मेरा नज़रिया और मेरा ईमान ये होवे, मेरा तकवा ये होवे कि मैं रियासत मदीना समझ के, मैं अपने अल्लाह की रज़ा समझ के खालिस्तान उहदी रज़ा वास्ते अपने नबी दी जो मेरे नबी ने मेरे वास्ते हुक्म किया है उन्हां दी ताबेदारी वास्ते, उन्हां दे हुक्म वास्ते मैं इन्हां दी मदद कर रहा और रियासत मदीना समझ के कर रहा। तो अल्लाह ताला इंसान नूं इन्ना क नवाज दिंदा है, ये तो उहदे नाल कारोबार है तुहाडा। तो इहदे नाल ही मैं तुहाडे कोल इजाज़त चाहांगा, फिर इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा किसी नवे वीडियो नाल। उदों तक इजाज़त दिओ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।